Hello students, I hope you all are doing well. Welcome to the next lecture of MS Excel, and in this lecture we are going to discuss about the advanced features of Excel. This lecture is the first part of your unit 4 of your syllabus. So let's begin with the lecture. We have the contents as multiple worksheets. We will be discussing about the multiple worksheets and how you can work in the multiple worksheets. Then we will be having cell referencing. What is it? What different types of cell referencing? Then the use of formulae, how you can use the formulae in MS Excel, and about the functions. We will learn a few of the functions, how they are applied, and what is the purpose of applying functions. So let's start with the lecture. My first lecture is creating multiple worksheets and using the multiple worksheets in MS Excel. Now the concept of multiple worksheets states that in a single workbook you can have different pages or different sheets, worksheets to work upon it. You can have different categories of data and still you want to keep them organized. For example, आपने पूरे साल का डेटा रखना है और आपने उसको सेल को आपने मंथ वाइज डिवाइड किया है या आपने रीजन वाइज डिवाइड किया, बट कुछ ऐसा है कि यू हैव टू कीप देम टुगेदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू हाउ टू इंसर्ट अ शीट. अब बाय डिफॉल्ट किसी भी वर्कशीट में यू गेट 3 शीट्स, शीट 1, 2, 3, 4 and 5 आई हैव एडेड. बाय डिफॉल्ट किसी भी वर्कबुक में जब आप एक्सेल ओपन करोगे तो 3 वर्कशीट मिलेंगी. इफ यू वांट टू ऐड अ न्यू वर्कशीट, देयर इज अ टैब of new worksheet and you can add. Just click on this and your worksheet will be added. That's it. Now if you want to create the name of the worksheet, you can just right click on the worksheet tab and you can rename the worksheet. आप जो भी नाम देना चाहते हो, आप जैसा भी जो भी नाम आप इसको दोगे आप अपने आराम से इनको नेम दे सकते हो. दिस इज रीनेमिंग. हम क्वार्टर 1 का डेटा है ये. दिस इज क्वार्टर 2 डेटा. फॉर सपोज फॉर डेमो पर्पस आई हैव यूज्ड दिस. Suppose I have made these 3 worksheets I have made. You want to change the color, you can change the color also. Tab color you want to change. I have changed it to red. And if you want to delete a worksheet, just right click and from here you can just select the delete option. Yes, delete. Here also you can click on the delete option, you can delete. It's as simple as that. Now another feature of worksheets is to group the worksheet. Now I want different worksheets should have the same detail. For example, this is my main worksheet and to put, let me delete this data. I want to put, this is also vacant. Okay, now अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये डेटा जो है मैं चाहती हूँ कि साइमल्टेनियसली इकट्ठे ही मेरी तीनों शीट्स के ऊपर आ जाए. उसके लिए व्हाट यू विल डू इज, आपने शिफ्ट बटन प्रेस करना है और आपने क्वार्टर को क्लिक करना है. शिफ्ट बटन क्वार्टर 2. यहाँ पे देखो आपका मैसेज ग्रुप 2. सी हियर I just क्वार्टर हेयर ग्रुप हो गया. नेक्स्ट आपने शिफ्ट को प्रेस करके ही रखना है, ग्रुप कर दिया. नाउ दीज 3 वर्कशीट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर. सो लेकिन जब क्या होगा, अब जो करोगे, सपोज करो मैं यहाँ पे कोई काम कर रही हूँ. आई हैव रिटन हेयर सीरियल नंबर. नेक्स्ट इज मंथ. Next is suppose करो item. Next is price and so on.
Now see what happens. I have filled this data into one first sheet. It will be available in second also. It will be available in third also. See, I am clicking on this और मेरे को data तीनों में मिल रहा है. This is how you can work simultaneously. अब again अगर आपको delete करना है, quarter 1 को select किया, then press the shift button, quarter 2 selected, then quarter 3 selected. Now I want to delete this data. अब आप एक जगह से delete करोगे, you can check ये सब जगह delete. See a demo. One more thing is there. Suppose मेरे को ये data तीनों ही वर्कशीट के अंदर डालना है. मैंने इसको कॉपी कर लिया. अब क्वार्टर 1 अगेन क्वार्टर 2 इसको ग्रुप कर लेते हैं. क्वार्टर 3 को ग्रुप कर लिया. अब आई विल पेस्ट दैट कॉपीड डेटा. नाउ अब आप देखोगे क्वार्टर 1 में भी है, क्वार्टर 2 में भी है, क्वार्टर 3 में भी है. ये तीनों के तीनों में डेटा है. अब ये तो हो गया कॉपी. अगर अच्छा अनग्रुप करने के लिए अगर आप किसी एक और टैब पे क्लिक कर दोगे तो ये अपने आप ही अनग्रुप हो जाते हैं. जैसे अगर जो ग्रुप्ड आइटम है उनके अलावा आपने किसी शीट पे भी आपने इसको क्लिक किया वो ऑटोमेटिकली अनग्रुप हो जाएगा. नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू यूज इज सपोज आई वांट टू मेक द समरी. मुझे डेटा समराइज करना है. समराइज इन द सेंस कि मुझे ये देखना है कि सब में टोटल मतलब तीनों ही क्वार्टर्स का टोटल क्या है. तो आई वांट दिस टेबल और ये जो अमाउंट है ये मुझे तीनों क्वार्टर्स का टोटल चाहिए. हाउ दिस कैन बी डन. अब मुझे तीनों क्वार्टर्स का टोटल यानी कि देखो क्वार्टर 1 में जैन की जो अमाउंट है वो 1500 है, क्वार्टर 2 में भी 1500 है, क्वार्टर 3 में भी 1500 है. अब मुझे समरी में आई वांट द एडिशन ऑफ ऑल द आइटम्स फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. मतलब जनवरी का जनवरी में ऐड होए, फरवरी का फरवरी में, तीनों का ऐड होए, मार्च का मार्च का ऐड हो. उसके लिए क्या करेंगे, मैंने एक फॉर्मेट बना लिया समरी शीट का कि मंथ्स लिख दिए, सीरियल नंबर लिख दिए. अब मुझे अमाउंट चाहिए तीनों क्वार्टर्स का जनवरी मंथ का. तो उसके लिए व्हाट आई विल डू, मेरे को इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है. इज इक्वल टू सम. ये फॉर्मूला कैसे आया अभी नेक्स्ट अगली स्लाइड पे देखेंगे. उसके बाद आई क्लिक ऑन क्वार्टर 1. क्वार्टर 1 की जब आप स्लाइड खोलोगे तो आप उसमें जो भी जैसे जनवरी का था तो यू विल इस पे 15 जो फर्स्ट इस पे C2 पे क्लिक करेंगे. अब इस शीट को शिफ्ट के साथ प्रेसिंग ऑन द शिफ्ट यू विल क्लिक ऑन क्वार्टर 3. अब यहाँ देखो ये रेंज आ गई है क्वार्टर 1 से लेके क्वार्टर 2 तक, लेकिन इसका क्या है C2, तीनों का ही C2. और यहाँ मैंने ब्रैकेट क्लोज की और एंटर प्रेस किया. समरी शीट है, समरी शीट के अंदर ये मेरा 1500 ऐड हो गया. देखो क्वार्टर 1 की जो वैल्यू थी वो थी 1500. सिमिलरली क्वार्टर 2 की जो वैल्यू थी वो 1500, क्वार्टर 3 वैल्यू की जो वैल्यू थी वो भी 1500. तो तीनों की अलग अलग शीट पे तीनों अलग अलग वैल्यूज थी और हमने समरी शीट बनाई. समरी शीट में उसने इन तीनों को प्लस करके दे दिया. अब यही फॉर्मूला अगर आपने बाकी सेल्स पे कॉपी करना है तो आप इसको ड्रैग करके इसको कॉपी कर सकते हो. सी अब ये हमें इसका मिल गया. तो दिस इज हाउ यू कैन समराइज द मल्टीपल शीट्स. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल रेफरेंसिंग. कि सेल रेफरेंसिंग होती क्या है, क्या मतलब है इसका. तो वैसे तो हम कर चुके हैं सेल रेफरेंसिंग. सेल रेफरेंस मैंने यूज भी किया है, आपको बताया भी है फर्स्ट लेक्चर में जो एक्सेल का था. उसमें क्या होता है कि एक सेल एड्रेस है. सेल एड्रेस लेके चलते हैं. एक तो कॉलम का नाम और उसके साथ रो का नाम. सपोज करो ये ए कॉलम है, ए कॉलम के साथ फर्स्ट रो, तो इस सेल का एड्रेस क्या हो गया A1. सिमिलरली ए कॉलम है, रो का एड्रेस 3 है, तो इस सेल का एड्रेस क्या हो गया A3. ऐसे ही B है, B अगर रो 1 का अगर करेंगे तो यहाँ पे B1 आएगा, ऐसे ही B2 B3. तो these are called सेल एड्रेसेस जो कि एक सेल को आइडेंटिफाई करते हैं वर्कशीट में. सेल रेफरेंसिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू यूज फॉर्मूले एंड फंक्शंस. आप फंक्शंस और फॉर्मूले को जैसे अप्लाई करोगे तो उसमें आपका सेल रेफरेंसिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है. अब
हमें एक और चीज भी आती है इसके अंदर कि रेंज रेफरेंसिंग। रेंज का मतलब जब एक से ज्यादा सेल्स को आपने रेफर करना है, बताना है, तो जैसे ब्लॉक ऑफ 2 और मोर सेल्स। अब जैसे कि आपने A1 से लेके C2 तक यहां तक का ये पूरा, ये A1 से अगर मैं कहती हूँ कॉलन लगा के पहला सेल कौन सा है और उसके डायगनली कौन सा लास्ट सेल है, ये उसकी रेफरेंस बताता है A1 to C2। तो A1 से लेके इस सेल से लेके यहां तक इसकी रेंज जो है, इस पूरी टेबल की रेंज डायगनली कैलकुलेट होती है, तो A1 से C2 तक इसकी रेंज होगी। आप इसको अगर रेंज देना चाहते हो कि A1 से C1, जैसे आप इस रो से इस सेल से यहां जाना चाहते हो तो आप लिखोगे A1 कॉलन C1। सिमिलरली अगर आप लिखना, आप इस B वाले से यहां से नीचे ही आना चाहते हो तो यू विल राइट B1 कॉलन B2। तो दिस इज एड्रेसिंग सेल्स। आपने कौन से कहां से कौन सी रेंज एड्रेस करनी है, किस तरीके से करनी है, तो ये आपका वो तरीका है। नेक्स्ट इज कि टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग कितनी तरह की होती है। 3 तरीके की सेल रेफरेंसिंग है, एक रिलेटिव, एक एब्सोल्यूट और एक होती है मिक्स्ड। हम ये तीनों ही तरीके की करेंगे। एब्सोल्यूट क्या है, रिलेटिव क्या है और मिक्स्ड क्या है। सो देखते हैं ये कैसे। सेल रेफरेंसिंग करने के लिए हमने एक छोटा सा डेटा ले लिया है, दिस इज डेटा 1 और ये हमारे इधर डेटा 2 है और ये इसके ऊपर हम सपोज ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। सेल रेफरेंसिंग में सबसे पहले आता है कि हम रिलेटिव रेफरेंसिंग कैसे करते हैं। रिलेटिव कैसे करेंगे, सपोज करो कि मुझे यहाँ पे आई वांट कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 होए और यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 2 हो, यहाँ 30 मल्टीप्लाई बाय 3 हो और 40 मल्टीप्लाई। तो इस कॉलम में मैंने जो फॉर्मूला लगाना है दैट विल बी इक्वल टू सम, सॉरी हमने फॉर्मूला लगाना है इनको मल्टीप्लाई करने का। तो सिंपल सी चीज है, ये कौन सा सेल है, सी, दिस सेल C3 अपने आप ही वो एड्रेस ले लेगा। C3 के बाद यू वांट टू मल्टीप्लाई क्या किया आपने इसके साथ D3। ये इसको देखो आप एक बार, ये देखो C3 इज इक्वल टू C3 मल्टीप्लाई बाय D3। अब आप इसको जब एंटर प्रेस करोगे तो सी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 10, इसने अब दे दिया। अब इसको अगर आपको फॉर्मूला देखना चाहते हो कि आपने ये वाकई ही क्या फॉर्मूला लगा था, तो इसमें वी कैन ऑल्सो सी कि आपके फॉर्मूला, तो शो फॉर्मूला सी, हमने इसमें ये फॉर्मूला लगाया C3 मल्टीप्लाई बाय D3। अब इसको अगर आप ड्रैग करोगे, ये फॉर्मूला सारे में कॉपी करोगे, तो ये इसको आप ड्रैग करके ये कॉपी भी कर सकते हो आप फॉर्मूला। तो सी देखो, अब इसमें तो C3D3 हुआ था, अब यहाँ पे क्योंकि C4 रो होगी, यहाँ D4 रो हो गई, तो इसने C4D4 अपने आप ले लिया। ये C5D5, C6D6, मतलब आपने फॉर्मूला जब कॉपी किया सारे सेल्स में, उसने अपने अकॉर्डिंगली सेल के एड्रेसेस को चेंज कर दिया। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग बिकॉज, क्योंकि ये देखो रिलेटिव है, आप इस सेल में गए तो C3D3 होएगा, उसमें गए C4D4 होएगा, इसमें गए C5 होएगा और इसमें गए तो C6D6 होगा। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग है। अब जो सेकंड एक और चीज आपके पास आती है दैट इज योर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कैसे होएगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कोई फॉर्मूला मेरे को चाहिए कि मैं इस वाले सेल को, ठीक है, और मल्टीप्लाई करूं, और मल्टीप्लाई किससे करना है, इस सेल से, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरा जो है मतलब 10 से ही सबको मल्टीप्लाई करूं, मतलब इस वाले सेल के सभी से 10 को ही मल्टीप्लाई करना है, मुझे रेफरेंसिंग नहीं करनी। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस D3 को फिक्स्ड करना चाहती हूँ, और फिक्स्ड करना चाहने के लिए यू हैव टू पुट अ डॉलर साइन। आप जब डॉलर साइन लगा दोगे, और हमने 3 को भी फिक्स कर लिया कि ये भी डॉलर ही रहेगा,
ठीक है, और इसको भी आपने इसको बंद जब किया तो यू विल सी हियर दिस इज द फॉर्मूला, इफ यू वांट टू सी द डिजिट आपको 10 आएगा। अब मैं इसको देखना कॉपी करती हूँ, मैं इसको ड्रैग करती हूँ, सी अब यहाँ पे 20, 30, 40, 50 ही आया, ऐसा क्यों हुआ? लेट्स सी फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा है, आपने D3 को फिक्स कर दिया था, D3 मतलब 10 वॉज फिक्स्ड, लेकिन हमने C3 में जो थी वो रिलेटिव रेफरेंसिंग थी, उसको हमने फिक्स नहीं किया, उसकी एब्सोल्यूट नहीं बनाई। तो एब्सोल्यूट सेल्स बनाने के लिए वी यूज डॉलर साइन, और डॉलर भी दो तरह से बनाया है, डी इज फॉर कॉलम, कॉलम को भी हमने फिक्स कर दिया और 3 भी हमने फिक्स कर दिया, रो को फिक्स कर दी, तो यानी कि 10 वैल्यू, अब ये 10 वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई हुई है, 10 वैल्यू भी 3 से, 4 से और 5 से। अब इसमें एक और वेरिएशन आप कर सकते हो, इफ यू नीड आप 3 को फिक्स मत करो एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। अब पहले मैंने को इसको डिलीट करना पड़ेगा, इसको डिलीट कर दो। नाउ सी द रिजल्ट्स, इफ आई ड्रैग इट डाउन, अब इसका फॉर्मूला देखो, अब आपने 3 को फिक्स नहीं किया था, डॉलर सिर्फ डी के आगे लगा था, 3 जो है, अब देखो D3, D4, D5, D6, हमने D को कॉलम से कर लिया सेम, पर हमने इसके नंबर्स को सेम नहीं किया। तो अब इफ यू सी द रिजल्ट्स, नाउ द रिजल्ट्स आर अगेन लाइक दिस। सो दिस इज रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ फार्मूले की। वैसे तो हमने सेल रेफरेंस एक फार्मूला यूज किया है मल्टीप्लाई का, तो व्हाट आर द फार्मूला? तो फार्मूला is an expression that operates on the values in a range of cell or a cell। मतलब कि आपके सेल्स में जो वैल्यू है उसके ऊपर अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, आप उनको प्लस करना चाहते हो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो, डिवाइड करना चाहते हो, इवन उसका पावर निकालना चाहते हो, देन यू कैन यूज फॉर्मूले। आप अपनी तरफ से कोई भी फॉर्मूले बना सकते हो, अपनी रोज की वैल्यूज के साथ, अपने सेल में जो वैल्यूज है उनके साथ अपने अकॉर्डिंगली आप खेल सकते हो। यू कैन यूज ईदर प्लस, यू कैन यूज माइनस, यू कैन यूज एस्ट्रिक, you can use slash for division and you can use this power symbol। so ये सारे सिंबल यूज करके आप कोई भी अपने इसमें फॉर्मूले आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर लेट्स सी, आओ अब सारे हम इसमें फॉर्मूले अप्लाई करके देखते हैं कि हम कैसे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास यही डाटा है, अब इस डेटा के साथ मुझे कैसे इसके ऊपर मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर के कैसे फॉर्मूले में अप्लाई कर सकती हूँ। लेट्स सी। सबसे पहले दिस इज योर फार्मूला बार, ये आपकी फार्मूला बार है। यहाँ पे यू कैन टाइप द फॉर्मूला की, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द सेल। अगर सपोज करो मैंने ये सेल सेलेक्ट किया तो इस सेल में आई वांट कि मैं इस पूरे कॉलम का सम लिखूं, सभी का इसका पूरे का सम लिखूं। तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले यू विल राइट इज इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला शुरू होगा वो इक्वल टू के साइन से शुरू होगा। यू विल स्टार्ट द ब्रैकेट। अब मुझे यहां से शुरू करना है, मैं इस सेल का रेफरेंस दूंगी, देन अब प्लस करना है ये वाला सेल, फिर प्लस करना है ये वाला सेल, फिर प्लस करेंगे ये वाला सेल, एंड आई विल क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। सी, उसने उसको सबको प्लस करके दे दिया। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, यहीं पे इस नेक्स्ट कॉलम में हम रिजल्ट देखेंगे। दूसरा तरीका क्या है, इज इक्वल टू लिखा, सम करने के लिए यू हैव अनदर, यू कैन यूज सम। ये फंक्शन है जो नेक्स्ट टॉपिक है, वी कैन, आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि कैसे कर सकते हैं। सम में हमने क्या किया, पहला कॉलम डाला, उसके बाद कॉलन के बाद यू कैन सेलेक्ट द नेक्स्ट सेल जहां तक सम करना है, जो रेंज है वो स्पेसिफाई कर सकते हो आप। एंटर करो, यू विल सी द रिजल्ट इज अगेन 15। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला लगाना, फिर प्लस का लगाना। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है या माइनस करना है। सपोज इन दो रोज को
आई वॉन्ट कि मैं इस वाली रो से इसको माइनस करूं, बहुत ही ईजी है, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, मैं चाहती हूँ नीचे वाले से माइनस हो जाए फर्स्ट वाला, ठीक है, दिस इज माई फॉर्मूला। अब मैं इसके ब्रैकेट क्लोज करूंगी एंड प्रेस एंटर, सी 20 माइनस 10। अब इसको अगर इफ यू वांट टू सी फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला देखना है कौन सा लगा है, तो आपने फॉर्मूला टैब पे जाना है और वहां से शो फॉर्मूला पे क्लिक करना है। शो फॉर्मूला पे आपको पता लग जाएगा कि इसने क्या किया, D4 माइनस D3 किया है। अब ये फॉर्मूला मुझे यहाँ भी अप्लाई करना है, या तो मैं इंडिविजुअली टाइप करूं एंड देन राइट, इट इज वेरी टेडियस जॉब। अदरवाइज व्हाट आई कैन डू इज, मैंने सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको ड्रैग कर देना कि मुझे यही फॉर्मूला सारे सेल्स पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। यू कैन जस्ट द फॉर्मूला टू एंड जहां तक भी आपको चाहिए। अब ये यहाँ पे देखो D4 माइनस D3, D4 5 माइनस D4, ये आपकी रिलेटिव रेफरेंसिंग है। तो अगर आप इसको शो फॉर्मूला को अनक्लिक करोगे तो यू विल गेट दिस, ठीक है। यहाँ माइनस 50 इसलिए आया बिकॉज इसने क्या किया, 8th वाली रो से चेक किया है, 8th रो से चेक किया, 8th रो वॉज 0, 0 माइनस 50, इट विल गिव यू माइनस 50। Similarly, you can apply the operation, suppose मुझे इसमें is equal to करके और मुझे इस वाले की is equal to ब्रैकेट शुरू और इस वाले सेल की मुझे पावर कैलकुलेट करनी है, मतलब मुझे स्क्वायर निकालना है। तो यू विल जस्ट डू दिस, 1 का स्क्वायर इज 1 और आप इसको ड्रैग कर दो फॉर्मूले को सारे इसमें। 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर and 5 का स्क्वायर इज 25. Likewise, you can apply any formula, you can even create your own formula. आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि आपको किस चीज की जरूरत है और उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हो। Now next topic is functions. Now what are functions? अब हमने फॉर्मूले लगाई, फॉर्मूले में हम डायरेक्टली कोई ना कोई सिंबल यूज कर रहे थे, कुछ ना कुछ लगा रहे थे कि भी हम कैसे ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, हम ऑपरेशंस खुद परफॉर्म कर रहे थे। बट एक्सेल प्रोवाइड्स यू अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस जो कि पहले से ही प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज है, उन्होंने पैकेज बना के रख दिए कि इफ यू वांट टू अप्लाई दिस फॉर्मूला तो अप्लाई दिस फंक्शन, अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप दूसरा फंक्शन अप्लाई कर दो। जैसे कि अगर आपको सम निकालना है तो आप डायरेक्टली सम का फंक्शन बजाय कि सारे सेल्स को ढूंढ ढूंढ के प्लस करने की बजाय अगर कोई रेंज है या उसको आप डायरेक्ट फंक्शन लगा के उसको सम कर सकते हो। एवरेज निकालना है, काउंट निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये आराम से फंक्शंस इनबिल्ड फंक्शन है जिसके थ्रू आप निकाल सकते हो। किस किस कैटेगरी, देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस इन एक्सेल। सी ये पूरा का पूरा टैब जो है इट हैज वेरियस फंक्शंस। जैसे अगर मैं ऑटो सम का निकालूंगी, सम का है, वे एवरेज फंक्शन है, काउंट नंबर्स है, मैक्स और मिनिमम है, और इसके बाद फाइनेंशियल फंक्शन निकालेंगे। ये इतनी लिस्ट आपके पास बहुत लंबी लंबी लिस्ट है, ये आपके फाइनेंशियल फंक्शंस हैं। नेक्स्ट इज योर लॉजिकल फंक्शंस एंड इफ, फॉल्स, इफ एरर, नॉट, नॉर और ट्रू। कुछ टेक्स्ट के फंक्शंस है, जैसे आपके सेल्स में टेक्स्ट डेटा है, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर वाला डेटा है और उसके साथ आपने कुछ करना है, उसके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप इसमें से जैसे किसी को कॉन्केटेनेट करना है, 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ना है, या हमने किसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, या उसको लोअर केस में करना है, तो यू कैन यूज द फंक्शंस जो कि इसके अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। डेट और टाइम के भी बहुत सारे फंक्शन है कि डेट की वैल्यू निकालनी है, या डे निकालना है, डेज निकालने हैं, या मंथ निकालना है, आवर्स, मिनट्स, मंथ, ये सारा ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। ये रेफरेंस वाले फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर देयर। अगर किसी का लॉग निकालना है, एलसीएम निकालना है, जीसीडी, फ्लोर, फैक्टोरियल, इवन, ये सारे के सारे आप सिंपली एक फंक्शन अप्लाई करके ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इसमें ये अलग अलग कैटेगरीज है, मतलब बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस है एक्सेल में प्रोवाइड करता है। आप कोई भी फंक्शन यूज करके जिस तरीके का आप ऑपरेशन
चाहते हो, you can see those all functions are there or predefined in Excel and you can use them in your document. अब मैं जो यहाँ पे दिखा रही हूँ, आई एम गिविंग यू इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यू फंक्शंस, जो बहुत ही थोड़े से फंक्शन है, जो बेसिक फंक्शन है, जो हमें आने चाहिए, एंड प्लस आपको तरीका आएगा लगाने का। तो सो अब जैसे ये इवन फंक्शन अभी डिस्कस किया, इवन फंक्शन क्या करता है, कोई भी वैल्यू हो, चाहे डेसिमल में हो या नॉर्मली कोई भी होल वैल्यू हो, उसको उसके नियरेस्ट इवन नंबर में चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल सारे फंक्शन और फॉर्मूले इक्वल टू साइन से शुरू होंगे, इक्वल टू इवन मैंने लगाया, इवन इज द फंक्शन नेम, ब्रैकेट स्टार्ट, किसका इवन निकालना है, दिस सेल, द सेल गॉट सिलेक्टेड एंड क्लोज द ब्रैकेट। देखो 1 का नियरेस्ट इवन क्या है, 2। अब मुझे यही फॉर्मूला अगर मुझे सबके इवन निकालने हैं तो आप सिंपली ड्रैग करो, 2 का 2 हो गया, 3 का 4 हो गया, 4 का 4 और 5 का 6 हो गया। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द इवन नियरेस्ट इवन ऑफ अ नंबर। अब ये सम का नंबर, सम का फंक्शन है, सम आपको पता ही है कि आप जितनी भी वैल्यूज है उनको सम करना चाहते हो। सपोज मैं इस सेल में सम का जो रिजल्ट है वो लाना चाहती हूँ, सो हम यहाँ क्या करेंगे, वी विल जस्ट अप्लाई इज इक्वल टू एंड राइट सम ओवर हियर, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। उसके बाद कहाँ से शुरू करना है सम करना, हम उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगा के, और यू कैन जस्ट, यू डोंट हैव टू अप्लाई कॉलन ऑल्सो, आप ना उसको सिंपली आप जहां पे आपने खत्म करना है वहां तक ले जाओ, E3 E4 से लेके E8 तक। अब आप उसको ब्रैकेट क्लोज कर दो एंड प्रेस एंटर। सी 130 किया, सभी के सम्स को, सभी डिजिट्स को प्लस कर दिया। फैक्टोरियल का फंक्शन, फैक्टोरियल निकालना है आपने किसी नंबर का, तो यहां लिखेंगे इज इक्वल टू FACT फैक्टोरियल फंक्शन एंड प्लस आप किसका फैक्टोरियल निकालना चाहते हो, मे बी इसका निकालना चाहते हो तो सेलेक्ट हो जाएगा एंड जस्ट ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। सी 2 का फैक्टोरियल इज 2 और अगर आप इसको ड्रैग करोगे ये इनके सबके फैक्टोरियल निकाल देगा। 2 का इज 2, क्योंकि हमने क्या ये वाला सेल सेलेक्ट किया था ना, तो ये रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या करेगा, ये इसी रो में बढ़ेगा आगे, इसी कॉलम में बढ़ेगा आगे। तो ये 2 का, ये 4 का फैक्टोरियल 24 है, 6 का 720 है, तो इसने ये फैक्टोरियल निकाल के दे दिया। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द ऑड नंबर्स, ऑड वाला फंक्शन जो है सिमिलरली जैसे इवन का फंक्शन था बिल्कुल वैसा ही है। आपने इज इक्वल टू है ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद सपोज करो मैंने ये सेल सेलेक्ट किया एंड ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। सी 23 का नियरेस्ट है 23। अब मुझे इस फॉर्मूले को अगर मैं ड्रैग करती हूँ तो 35 का नियरेस्ट ऑड है, 34 का ऑड है 35, 34 का ऑड है 35, 21 का 21। सो इसने आपके ऑर्डर ऑड नियरेस्ट ऑड नंबर कैलकुलेट कर दिया। सिमिलरली हमारे पास पावर का फंक्शन है, पावर का फंक्शन भी ऐसे ही अप्लाई होगा, इज इक्वल टू पावर, ब्रैकेट में किसकी पावर निकालनी है, सपोज मुझे इसकी ही निकालनी है, G4 की कर दो, is equal to bracket start this number and bracket close and press enter। ओके हमें कितनी पावर अप्लाई करनी है, साथ में ये भी देना पड़ेगा कॉमा 3 या 2, जितनी भी अप्लाई करनी है आपने वो भी इसको देना पड़ेगा कि हाउ मच पावर, नंबर अकेला नहीं देना ना, उसकी कितनी पावर लगानी है वो भी देना है कि आपने 3 पावर कैलकुलेट, 2 raised to power 3 is 8। तो इसको आप ड्रैग करना चाहते हो तो आपको ये नंबर सारे मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर किसी नंबर को आपने रोमन में कैलकुलेट करना है कि उसका रोमन न्यूमेरल निकालना है, निकालेंगे। सपोज मुझे यहाँ लिखना है इसका रोमन, तो अगेन आई विल टाइप हियर इज इक्वल टू रोमन।
अब रोमन के बाद यू विल जस्ट राइट द नंबर, ये वाला नंबर है, ब्रैकेट क्लोज करो एंड यू विल गेट आई। अब इसका आगे आप इसको ड्रैग करके सारों में इसको ला सकते हो। सी ये रोमन नंबर्स लिखे गए एज इट इज जैसे आप चाहते थे। तो ये 6 का, 10 का, 12 का रोमन नंबर्स हैव बीन क्रिएटेड। स्क्वायर रूट का फंक्शन भी सेम उसी तरह काम करता है, इज इक्वल टू SQRT for square root you will write and start and you will select the row cell and just press enter। 25 का square root is 5 and you can just drag it on to others cells also to get the। ये तो बेटा ये बहुत ही थोड़े से फंक्शंस हैं जो we are able to discuss over here। There are n number of functions। आप इसके थ्रू भी आप इनको इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ से लाना चाहते हो तो you can just use that function also कि उसने इस पूरी रेंज को प्लस करके दे दिया आपको। सपोज करो आपको इस पूरी रेंज को प्लस करना है, रिजल्ट इसकी यहाँ आएगा तो आप सिंपली ऑटो सम में क्रिएट करो, बस कुछ दिक्कत ही नहीं है। ये देखो इसने इसको सबको प्लस कर दिया। डायरेक्टली भी मेन्यू बार से भी आप फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो, खुद टाइप करके भी फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप खुद से फंक्शन नहीं, आपको जो इनबिल्ट फंक्शन नहीं यूज करने हैं तो अपने खुद के फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हो। Now it's time to practice what we have learned here. So let's see how much you have achieved from this lecture. तो पहले बच्चे एक ना छोटा सा आपने काम करना है। दिस इज अ प्रैक्टिकल वर्क टू बी डन। आपने एक न्यू वर्क फरवरी, मार्च, अप्रैल नाम की शीट्स बनानी है। उसके अंदर एक और न्यू शीट इंसर्ट करनी है और उसका नाम करना है A1 समरी। अब फिर एक और आपने एक शीट बनानी है एक्सपेंसेस समरी, जो कि बिल्कुल राइट में बनानी है। और फिर A1 समरी को मार्च और अप्रैल के बीच में डालना है। उसके बाद आप जनवरी टैब का कलर जो है वो ब्लू करोगे और फरवरी टैब का जो कलर है वो रेड करोगे। और फिर जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीनों की जो वर्कशीट होगी उसको आप ग्रुप करके दिखाओगे। दिस इज अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज फॉर यू। ये आपने बैठ के करनी है अपनी, और अपने टीचर को सबमिट भी करनी है कि ये हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल रेफरेंसिंग, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स विद एग्जाम्पल्स। आपने बताना है कि सेल रेफरेंसिंग क्या है और कैसे इसका एग्जाम्पल दोगे। फिर इसके बाद बताओगे टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग जो हमने किए हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। तो आपने उसके टाइप्स लिख के बताना भी है कि कैसे होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिकल है। आपने अपनी एक्सेल की वर्कबुक खोलनी है, उसमें ये डेटा टाइप करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और ये एंट्रीज डालनी है। और फिर इस वाली एंट्रीज के ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर यू विल अप्लाई द फंक्शन सम, काउंट, मिन एंड मैक्स। इस पूरे डेटा के ऊपर आपने ये 4 फंक्शंस इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। एंड यू हैव टू टेक आउट द रिजल्ट, स्क्रीनशॉट लेके आप या वैसे रिजल्ट भी लिख सकते हो अपनी नोटबुक में और अपनी सब्जेक्ट टीचर को सबमिट करनी है। I hope you have liked the lecture, you have enjoyed the lecture and you have gained something from this lecture. Thank you so much.